عمرہ مک توران کے ایک شہر کی سرحدی سرائے میں موجود تھا۔ وہ اپنے ایک ذاتی کام کے سلسلے میں توران کے ایک دور دراز شہر مالکے جا رہا تھا، اور اس سفر کے سلسلے میں وہ سرائے میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ چونکہ وہ مسلسل سفر کر کے تھکا ہوا تھا، اس لیے کمرہ بند کر کے وہ چارپائی پر سویا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز سن کر وہ بے اختیار جاگ پڑا۔ کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ شاہی پیارے۔ باہر سے ایک وچتی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ پھر وہ بستر سے اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا تو دو بادردی پیارے اندر داخل ہوئے۔ تمہارا نام مرد ہے؟ ان میں سے ایک پیارے نے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تم کون ہو؟ خواجہ عمرو نے کہا۔ ہم بادشاہ توران کے پیارے ہیں اور ہمیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم عمرو عیار کو ساتھ لے جا کر صبح دربار میں پیش کریں۔ چونکہ سفر طویل ہے اس لیے تم فوراً تیار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ اس پیادے نے کہا لیکن میں تو مالک یہ جا رہا ہوں۔ خواجہ عمرو نے اگر تم اپنی رضا مندی سے نہیں جاؤ گے تو ہم بوم تمہیں بے ہوش کر کے اٹھا کر لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو بہرحال شماہی فرمان کی تعمیل کرتی ہے۔ اس پیارے نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ اسے دراصل قصہ آ رہا تھا کہ اس کا کام رک جائے گا، اور بادشاہ نے ظاہر ہے صرف دعوت کر کے اور تعریف کر کے واپس بھیج دینا تھا۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی جہاں آرا کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے، اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہو رہا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی ہے کہ تم یہاں موجود ہو تو انہوں نے ہمیں بھیج کر تمہیں بلوا لیا ہے۔ اس پیارے نے کہا تو عمرو کی آنکھوں میں بے اختیار چمک ابھر آئی، کیونکہ اب اسے بھاری انعام ملنے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم باہر رکو، میں لباس بدل لوں پھر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مرد نے اس بار خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسے الچ میں اپنا ذاتی کام بھی بھول گیا تھا۔ پیاروں کے باہر جانے کے بعد اس نے جلدی لباس بدل اور اپنی زنبیل گلے میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ شاہی پیاروں نے سرائے کے مالک کو پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے سرائے کا مالک باہر شاہی پیاروں کے ساتھ ہی موجود تھا۔ اس نے بھی خواجہ عمرو کی تعریف کی اور پھر خواجہ عمرو ان پیادوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر مک توران کے بڑے شہر فارسیہ روانہ ہو گیا۔ سارے راستے گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرنے سے خواجہ عمرو بے حد تھک گیا تھا، لیکن شاہی پیادے اسے ساتھ لیے مسلسل پہلے جا رہے تھے۔ بہرحال صبح ہوتے ہی وہ شاہی محل میں پہنچ گئے، جہاں پہلے خواجہ عمرو نے غسل کیا، لباس بدلا اور پھر شاہی مہمان خانے میں ناشتہ کر کے وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے شاہی مہمان خانے میں اپنا کمرہ بند کر کے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا کو نکلا اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی جہاں آرا کو ایک جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس جادوگر کا نام الما جادوگر ہے اور وہ سرخ پہاڑوں کے اندر رہتا ہے۔ الما جادوگر کو ایک خاص جادو حاصل کرنے کے لیے ایسی نوجوان شہزادی کا خون چاہیے جو اکلوتی ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، اس لیے وہ شہزادی جہاں آرا کو اٹھا کر لے گیا ہے اور اس نے سرخ پہاڑوں میں ایک نمار کے اندر اسے بے ہوش کر کے رکھا ہوا ہے، اور خود وہ ایک خفیہ غار میں جادو حاصل کرنے کے لیے جاپ کر رہا ہے۔ آج سے 7 روز بعد وہ شہزادی کو ہلاک کر کے اس کا خون پیالے میں ڈال کر پی جائے گا، اس طرح اسے وہ جادو مل جائے گا۔ خواجہ عمرو کے پوچھنے پر بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے پھر پوچھا۔ شہزادی ایک خاص جادو کی وجہ سے بے ہوش ہے، یہ اس وقت تک ہوش میں نہیں آ سکتی جب کہ عقاب پری اپنی گردن کا خون اس پر نہ ڈالے گی۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ عقاب پری کہاں رہتی ہے اور کیسے اسے میں مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی گردن کا خون شہزادی پر ڈالے؟ عمر و عیار نے پریشان ہو کر کہا۔ عقاب پری اصل میں ایک جادو گرتی ہے، ایک جادر میں اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس لیے جادو دیوتا کے پجاری نے اسے
उकाब बना दिया था, लेकिन फिर इसने पुजारी की एक शर्त पूरी कर दी तो पुजारी ने इसे परी बना दिया, लेकिन सिर्फ इसका चेहरा इंसानों जैसा है और उसके पर भी परियों की तरह खूबसूरत हैं, लेकिन इसके पंजे उकाब जैसे ही हैं और उसका जिस्म भी उकाब की तरह का है। वो चूंकि जादूगिरनी है इसलिए इसके गिले में एक इंसानी खोपड़ी लगी रहती है। इसके सर पर एक खूबसूरत ताज भी है, और ये बात सुन लो कि अगर तुम उकाब परी को मजबूर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसे अपनी जंबील की तमाम दौलत देना पड़ेगी, क्योंकि उकाब परी तुम्हारी तरह बेहद लालची और दौलत की भूखी है। बोलने वाली गुड़िया ने कहा, और इसके साथ ही इसकी आंखें दोबारा पहले जैसी हो गईं तो उमरों ने इसे वापस जंबील में डाल लिया। उन्ह दौलत और इस नामुराद उकाब परी को दे दूं, मैं इसे वैसे ही मजबूर कर दूंगा। उमरों ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर वो शाही प्यादों के साथ बादशाह के खास कमरे में पहुंच गया। तुमने मेरी इकलौती बेटी के बारे में सुन लिया होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को सही साल उम्मत वापस ले आओ। मैं तुम्हें इस का मुन्ह मांगा इनाम दूंगा। बादशाह ने उमरों से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सालमत, अब कतन बेफिक्र रहे। मैं शहजादी साहिबा को सही साल उम्मत वापस ले आऊंगा, लेकिन ये बता दूं कि शहजादी साहिबा को जो जादूगर उठा कर ले गया है वो उन्हें हलाक करना चाहता है, लेकिन मैं इसे भी हालुक कर दूंगा और शहजादी साहिबा को भी ले आऊंगा। मगर बादशाह साल उम्मत नेक शगुन के तौर पर अब कुछ न कुछ पेशगी इनाम मुझे दे दे। ख्वाजा उमरों ने अपनी तबीयत से मजबूर होकर कहा तो बादशाह ने फौरी तौर पर खजानेदार को हुक्म दिया और 100 बूथैलियां जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी मंगवा कर इस ने पेशगी इनाम के तौर पर ख्वाजा उमरों को दे दें। तो ख्वाजा उमरों की फौरन ही बाछी खिल गईं, क्योंकि इतना हुआ इनाम तो इसे काम करके भी ना मिलता था, जबकि ये इनाम इसे छीनगी के तौर पर दिया गया था। इसका मतलब था कि बाद में इसे बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। इसने झक कर बादशाह को 7 फर्शी सालम किए और फिर बादशाह से इजाजत लेकर वो शाही महल से बाहर आ गया, और फिर एक वीरान जगह पर पहुंचकर इसने अपनी जूतियां उतारी और उन्हें जंबील में डालकर इसने इंजील में से ओढ़ने वाली जूतियां निकाल कर पैरों में पहन लें, और फिर इसने जूतियों को हुक्म दिया कि वो इसे सुर्ख पहाड़ों में इस गार के करीब पहुंचा दे जहां शहजादी जहां आरा को बेहोशी के आलम में रखा गया है। इसके साथ ही इसके जिस्म को एक झटका सा लगा और वो किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ने लगा। काफी बांदी पर पहुंचकर उसका रुख बदल गया और वो इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर तकरीबन 4 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद उसकी रफ्तार सख्त होने लग गई और उसके साथ साथ वो खुद ब खुद नीचे उतरता चल गया। नीचे सुर्ख रंग की पहाड़ियां हर तरफ फैली हुई थीं। थोड़ी देर बाद जूतियों ने इसे एक पहाड़ी के सामने उतार दिया। ख्वाजा उमरों ने उड़ने वाली जूतियां उतार कर अपनी जंबील में डालें और आम जूतियां जंबील से निकाल कर पहन लें। इसके बाद इसने पहाड़ी में मौजूद गारों में शहजादी को तलाश करना शुरू कर दिया, और फिर एक गार में इस शहजादी लेटी हुई दिखाई दी। शहजादी बाविश थी। इसने शहजादी को उठाकर कांधों पर लादा और गिरता होता किसी न किसी तरह गार से निकलकर वो खिली जगह पर आया और उसने शहजादी को वहां जमीन पर लिटा दिया। शहजादी ने इंतहाई खूबसूरत जेवर पहने हुए थे। एक बार तो ख्वाजा उमरों का दिल चाहा कि वो ये जेवर उतार कर अपनी जंबील में डाल ले। इसने हाथ बढ़ाकर शहजादी के हाथ में मौजूद सोने के कंगन उतारना चाहे, लेकिन फिर इसने हाथ रोक लिए, क्योंकि इस तरह इसकी जंबील में मौजूद बुजुर्गों की दी हुई चीजें गायब हो सकती थीं, इसलिए इसने हाथ रोक लिए थे। इसके साथ ही इसे ख्याल आया कि अब इस उकाब परी को बुलाया जाए, लेकिन इसे याद आ गया कि बोलने वाली गुड़िया ने बताया था कि इसे जंबील में मौजूद तमाम दौलत उकाब परी को देना पड़ेगी और ऐसा वो किसी सूरत भी ना कर सकता था। चुनांचे इसने अयारी करने का सोचा। वो दौड़कर एक बड़े गार में आया। इसने जंबील में से तमाम दौलत निकाल कर इसे उकाब परी को भी नजर ना आ सके। अलबत्ता इसने सोने चादर सुलेमानी में लपेट कर रख दिया ताका किसी को हत्ता कि 2 थैलियां जंबील में रख लें ताका कुछ ना कुछ इस उकाब परी को दे सके। इसके बाद वो वापस शहजादी के पास पहुंच गया और ऊंची आवाज में उकाब परी को बुलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसे अपने अकब में परों की फाड़ फड़ाहट
सुनाई दी तो उसने मुड़ कर देखा तो इसे उकाब परी अपने करीब उड़ती हुई दिखाई दी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बोलने वाली गुड़िया ने बताया था। क्यों पुकार रहे हो मुझे? उकाब परी ने कहा, अपने गिले का खून इस शहजादी पर डाल दो ताकि ये होश में आ सके। उमरों ने कहा, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? परी ने कहा, तुम क्या फायदा हासिल करना चाहती हो? उमरों ने पूछा, तुम मुझे अपनी जंबील में मौजूद तमाम दौलत देने का वादा करो। उकाब परी ने कहा, चूंकि ख्वाजा उमरों पहले ही अयारी कर चुका था इसलिए वो फौरन ही रजामंद हो गया। इसके बाद उकाब परी नीचे उतरी। इसने ख्वाजा उमरों से खंजर लिया और अपने गिले पर हल्का सा जख्म लगाया और इसमें से निकलने वाले खून के कतरे इसने शहजादी पर डाले। जैसे ही खून के कतरे शहजादी पर पड़े, शहजादी होश में आ गई। इस लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं सा फैल गया और फिर एक रोती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा नाम अलमा जादूगर था। मैंने शहजादी को है होश किया था, मगर उमरों अय्यार ने इसे होश दिला कर मेरा जादू तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं हलाक हो गया। आवाज बंद हुई तो धुआं भी खत्म हो गया। अब निकालो दौलत, उकाब परी ने कहा तो उमरों ने इंजील में से 2 थैलियां निकाल कर बाहर रख दी। जो दौलत तुमने चादर सुलेमानी मैं डाल कर गार मैं छुपा छुपा रखी है वो भी दो। उकाब परी ने कहा तो उमर ओ अय्यार बे इख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। चुनांचे इसने फौरी फैसला कर लिया कि इस उकाब परी को, जो दरअसल जादूगिरती है, एलाल कर देना चाहिए। इसने जंबील में से खंजर निकाला और यखलत उकाब परी के पेट में मार दिया। खंजर सुलेमानी की वजह से उकाब परी, जो दरअसल जादू गिरनी थी, हलाक हो गई और एक बार फिर हर तरफ धुआं सा छा गया और फिर उकाब परी की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा नाम उकाब परी था और मैं जादू गिरनी थी। मैं लालच में आ गई, लेकिन उमर व अय्यार ने अयारी करके मुझे हालुक कर दिया। जब आवाज बंद हुई और धुआं छुट गया तो वहां उकाब परी की अलश पड़ी थी। उमरों ने जल्दी से सोने की 2 थैलियां उठाकर वापस जंबील में डालें और फिर गार में मौजूद अपनी दौलत भी उठाकर अपनी जंबील में डालकर वो शहजादी को साथ लेकर उड़न कालीन के जरिए बादशाह तोरान के पास पहुंच गया। वो खुश था कि इसने अपनी दौलत भी बचा ली और अब वो बादशाह से भी इनाम हासिल करेगा। वो शहजादी को साथ लेकर उड़न कालीन के जरिए बादशाह तोरान के पास पहुंच गया। वो खुश था कि इसने अपनी दौलत भी बचा ली और अब वो बादशाह से भी इनाम हासिल करेगा। खत्म शद। प्लीज़ मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।